we are starting our first session, Anubhav. First of all, I welcome you all of from different corners of the country who find your precious time to join us for this first session of Anubhav. Anubhav is the platform initiated by Unima Puppeteers Trust India, through which we got the opportunity to meet masters, puppeteers, knowing a deeper practice about their work and journey, connecting each other personally, and most importantly, to build the better understanding and networking amongst the community. So this is the attempt, Anubhav is the attempt to connect us more deeper and stronger each other. So today for the first session, we have Ratnamala Nori ma'am as my coordinator for the session, and we have the master puppeteers guest today, जिनको introduction की कोई जरूरत नहीं है. Their names are introduction in themselves. One is of course Dadi D Pudumjee, everyone knows. Puran Bhatt sir. So I am so Mike is now with Ratmala ma'am. You can take over to Namaste. Carry forward the session. Thank you, Manish. Thank you, Manish. Namaste and welcome to all of you to our first session of Anubhav. It is indeed a pleasure to see so many of you here, and it is indeed a pleasure for me to introduce the master puppeteers Dadi Pudumjee and Puran Bhatt. A very brief introduction. Dadi Pudumjee is a leading puppeteer in India, one of India's foremost modern creative artists and directors. He is the founder of the Ishara Puppet Theatre Trust, which is one of India's leading modern puppet theatre groups working with puppets, actors, and dancers, creating a style that is a synthesis between the East and West. Dadi Pudumjee is a graduate of NID, National Institute of Design, Ahmedabad, and had his initial training in puppetry from Meher Contractor at Darpana Academy of Performing Arts in Ahmedabad. He studied puppetry under Mikael Meschk from the Marionette Theatre Institute in Stockholm, Sweden, drama and puppetry pedagogue at Var Theatre, Medborgarhus, pardon my pronunciation, Stockholm, Sweden in 1979. He was a guest director at the Puppen Theatre, Berlin. In 1980, he founded the Sutradhar Puppet Theatre at the Puppetry Division at Sri Ram Center for Performing Arts, India's first contemporary puppet theatre repertoire company, and was its artistic director till 1986. He is Unima International first non-European president. Dadi has won various appreciation awards, including the Sangeet Natak Academy Award in 1992 and the prestigious Padma Shri Award by President of India in 2011. And I was privileged to attend his award ceremony, which was in Hyderabad, the Sangeet Natak Academy Award ceremony. And it was indeed a privilege to meet his mother, who was so happy to see her son getting this award. It was really a pleasure. So welcome, Dadi. We really want to learn from you, and it's really a pleasure to have you with us. Puran Bhatt is a traditional Kathputli puppeteer and a master of puppet manipulation and puppet making. He is also a Sangeet Natak Academy awardee for puppetry in 2003. He has brought the technique and narrative styles to his Kathputli art, learned under the directorship of Dadi Pudumjee in the 1980s, when he was a member of the Sri Ram Center Puppet Repertory. Over the past several years, Puran Bhatt has traveled to and worked in Europe and North America as part of the series of festivals of India held in various world capitals.
He has also collaborated with several French, German, and Mexican puppet and dance groups. So this is a very, very brief introduction, Puranji. I had the pleasure of attending many of his workshops and seeing many of his performances. And indeed, they were really fantastic. And I had a wonderful experience. So welcome to Puranji. Namaste. And I hope you're well. Namaste. And now we would like both the masters to share their experiences with us, their collaborative experiences. And Manish, I hand it over to you to start with your little questionnaire. Okay. So we can start with the session like one by one. First, Dadi sir will share their little journey about the collaboration, and then Puran sir will follow the session. And then we have the questions to both of our guest speaker about their collaborations. Then after that, we can open the questionnaires for the house. So we can start with Dadi sir. So sir, you can please start with your little journey about the collaboration. You came to Delhi and start this Sri Ram Center and meet Puran sir. And please go ahead. And you can share screen also if you have some pictures. Yeah. Okay. Thank you. Hello, everybody. Namaste, Puran. Kaise ho aap? No, this whole journey business, I think. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. We can hear you. The whole journey business started, I think, in 1980. 1980, I think it was sometime beginning of the year. I came back to Pune. My hometown is Pune from Sweden. Second visit, and I joined the Sri Ram Center. The late Panna Bharatram, who used to run that center, the director there, had requested a year before that if she could start a puppet repertory company. बहुत सारे puppet companies hai India mein. The first ones, big companies, were in Kolkata, in other cities. Ahmedabad, Darpana had a company, but as a full-time repertory company, मतलब कि एक ही जगह में बिल्डिंग में एक बेसमेंट थिएटर था, वो शायद पहली बार हुआ था उसमें, और हम लोग 5 या 6 जन थे. सबके नाम भी याद नहीं आ रहे. विनोद दुआ was there. He wrote our first script. I will show you some pictures. There was Sushma Pandit, Pranjala Gill, Jagdish Bhatt, Puran's elder brother, was there before Puran joined. Patik ji. Then many other people came in, Madhu, Om Gosai, Nathuram, Vijay. There are a lot of people who came to buy this repertory company. I was involved with till 1986. और उसके बाद I started my own freelance work. I have some pictures of some of the productions जो हम लोग ने उस टाइम किया था. उसमें एक ही चीज ये थी कि हर सैटरडे शाम को बेसमेंट थिएटर में एक शो हुआ करता था, और संडे मॉर्निंग को. तो जब नया शो तैयार हो जाता था तो we used to perform, and I can't remember Puran, but I think tickets were for 5 rupees or 2 rupees or something like that. हाँ, कभी-कभी खाली भी हो जाता था, थिएटर नहीं आते थे लोग, और हमने ये किया था कि जितने लोग स्टेज पे है उससे ज्यादा ऑडियंस में होना चाहिए. सपोज 10 लोग स्टेज पे है तो they cannot be less than 10 audience, but we normally used to get a good audience because that's Jagdish Bhatt, Puran's elder brother, and Puran at the back. This was a production which we had done called on a Rajasthani Gatha called Dhola Maru. And while the Rajasthani Bhattji carved his puppet on stage, he narrates the story and it's sung live, and with actors and puppeteers, and the first time we used large puppets. There were masks on top of the head that were worn. Yeah.
This was the first story that we had done. It was called Motu Ki Mooch. It was the Target children's magazine. Rosalind Wilson had written a story called Tiger for Breakfast, and we adapted that story. Vinod Duha was sitting at the bottom on the right, on Pranjala Gill, Pathik Ji, Jagdish Bhatt. We adapted that story or script into Hindi, and it was one of our most popular pieces. Also, first time that actors and puppeteers were seen on stage. Some were wearing black, some were acting, because in many of the performances till then, puppeteers were still hidden behind the screen things. This was an adapted Bunraku sort of technique where first time 2 or 3 people, I think in this there were 2 people normally using the puppets. Yeah. Next. The Dhola Maru in 19, I think it was 84, UNIMA International every 4 years has a huge congress, and that 84 congress was in Dresden in GDR, East Germany that time, and for the first time a sort of a modern puppet theater went out into Europe to perform. It was ICCR who had sent us, because till then we have lots of good traditional puppet theaters that have been. So there were 2 pieces here. One was a performance or a dance of Usha, which was again with 3 puppeteers, and then Dhola Maru. Dhola Maru then traveled from Dresden to, I think, Bulgaria, and from there we came to Moscow at the Puppet Theater in Moscow. Here we were hosted, here we were hosted by Sergei. We were hosted by Sergei Obratsov at that point, who is also passed away, Panna Bharatram. The whole team is here, if you see. And you see Puran also standing right at the back behind Seema, one of the Seemas. There are 2 Seemas there. A lot of people here have passed on as well. Girdhari Lal on the left was the light person. Another younger brother of Puran is next to him. Yeah, that's it. The Jagdish Bhatt is also there at the back behind Pannaji. Yeah, a very interesting incident happened in Moscow. Just before the performance, Jagdish Bhai got into this high fever. Very, very, very high fever it was. You cannot imagine. And he was shaking, and we said, oh my God, now there'll be quarantine, there'll be this, there'll be that. And we said, now kya kare? So they, of course, they called for a doctor backstage, and the doctor came, and we gave him, I think, a nice hot shot of vodka, and he gave him, I don't know what medicine. It was in a syringe, but that syringe was like a veterinary. This was while the Sri Ram Center, we started at the side. There was a shed made, a temporary shed at the side, and while the new building was built for the puppet theater, that's where we were practicing on the table Motu Ki Mooch. There's Pranjala Gill, Pathik Ji, Sushma Pandit, who still carries on puppetry. She's now in the USA, I think in, I don't know where, Texas, but Ji, yeah. How did you come in contact with Dadi sir, and how do you meet him in Sri Ram Center? तो आपको क्या ये कैसे लगा कि हमारी ट्रेडिशनल कठपुतली के अंदर कुछ नयापन आना चाहिए, या आपको लगा कि हमें मिलकर कुछ नया करना है? तो ये जर्नी कैसे शुरू हो गया? हाँ, तो दादी सर के साथ में जी के साथ जो वो शायद मेरे फादर और मेरी माँ, मेरी 2 माँएं ये नायका वर्कशॉप में काम करते थे, और वहाँ कोई प्रगति मैदान में हैंडलूम करके कोई कंपनी थी, तो उनका कोई प्रोग्राम तैयार करना था। वो दादी जी को मिला शायद, या नायका को मिला, ये मुझे मालूम नहीं, मैं बहुत छोटा था उस वक्त। और दादी जी ने वो तैयार करवाया था मेरे फादर के साथ मिलकर। तो तब से मैं दादी जी को जानता था, और दादी जी से इतनी मुलाकात नहीं हुई थी, तो बस वहीं से शुरू हुआ था। और फिर जब मेरे बड़े भाई साहब जगदीश भट्ट जी सन 80 में या 81 में
दादी सर के साथ जुड़े और श्री राम सेंटर ओपन हुआ, तो मैंने एक दो उनके प्ले देखे थे दादी जी के। एक तो मोटू की मूंछ जो अभी फोटोग्राफ्स वगैरह दिखा रहे थे, और दूसरा था छियो राम। तो ये दो उनके प्लेस देख के, क्योंकि मैं उस वक्त पपेट नहीं करता था, ना ट्रेडिशनल पपेट करता था और ना ही मॉडर्न पपेट को जानता था। मैं उस वक्त वुड कार्विंग करता था, और एक फैक्ट्री थी, फर्नीचर फैक्ट्री, जिसमें मैं काम करता था। लेकिन मैंने दादी जी के वो दो शो देखे श्री राम सेंटर में। वो दो शो देखने के बाद मेरे दिमाग ने फिर से पलटी खाई कि नहीं यार, कठपुतली में बहुत ताकत है, हमें ये करना चाहिए। तो भाई, बड़े भाई जगदीश जी के साथ में कई बार चला जाता था, और मेरे को अंदर भी नहीं आने दिया जाता था। मैं बाहर से खड़ा खड़ा देखता था। जो भी काम करते थे, वो एक झोपड़ी बनी हुई थी इनकी श्री राम सेंटर के अंदर, उसमें ये सब लोग थे और मैं बाहर कॉर्नर पे होता था। हाँ, लंच के टाइम पे हम मिलते थे आपस में। तो मैंने बहुत ट्राई किया उस वक्त कि भाई मैं ये पपेट सेंटर जो है वो ज्वाइन कर लूं, लेकिन मेरा हो नहीं पा रहा था। और लकीली एक भानु भारती करके है थिएटर डायरेक्टर, उनके मैंने 2-3 प्लेस किए थे एज ए एक्टर, एज ए पपेटियर। तो वो डायरेक्टर बन के आ गए श्री राम सेंटर के। तो उन्होंने मेरे को एक्टिंग रिपेट्री के लिए फॉर्म दिया भरने के लिए कि भाई तुम इसमें ट्राई करो और तुम आ सकते हो। मैं गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, और मेरे को फिर दादी सर ने बुला लिया। दादी सर ने अपने पास रख लिया। पता नहीं क्या था, क्या एक जॉइंट था, एक थिएटर से निकाल के मेरे को। मैं जब आया था अब इनका वो स्वागत उत्सव प्ले तैयार हो रहा था दादी जी का, फिर वो पपेट डांसर्स तैयार होती, तब मैंने शुरू किया था दादी के साथ में। और दादी के साथ में फिर मेरी जो जर्नी चली है वो इतनी अच्छी चली है कि मुझे नहीं लगा कि मैं दादी से अलग हूँ या दादी मेरे से अलग। हम दोनों बिल्कुल जैसे एक ही में कुछ चीजें मिलती हुई है। मैंने मॉडर्न पपेट और कंटेम्परेरी जो सोच है, जो मैंने अभी तक वो सिर्फ दादी से सीखा है। और श्री राम वो इतनी चली के श्री राम सेंटर का भी नाम पूरा हमने बहुत ही अच्छी तरह रोशन कर दिया। लोगों को जलन भी होने लगी थी कि भाई पपेट्री बहुत ऊपर जा रही है और रिपेट्री बहुत डाउन जा रही है। लेकिन हमें जब इतना काम कर रहे हैं तो हमारे साथ भी कुछ अच्छा होना चाहिए। जब अच्छा होने नहीं लगा तो दादी जी भी लेफ्ट होने लगे थे, जाने लगे थे। दादी जी जाने लगे तो हम भी लोग, हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि भाई हम बाहर काम नहीं कर सकते, तो हमारे भटजी ने छोड़ना शुरू कर दिया था। फिर ऐसे ही चीजों के अंदर हमारी ये जो जर्नी थी श्री राम सेंटर की, वो हमने भी छोड़ दिया। फिर श्री राम सेंटर जैसे भी चला, जितना भी चला, ये श्री राम सेंटर की किस्मत थी। और आज श्री राम सेंटर बंद पड़ा है। और ये जब वाकई पपेट्री थी, तब तक श्री राम सेंटर का कंपनी खोली। पहले एक यूनिसेफ से उनको प्रोग्राम्स मिले, कुछ प्ले मिला, तो वहाँ वो 3 तिलंगे करके हमने एक प्रोडक्शन बनाया था जो टेप में करते थे हम। तो उसमें भी हम साथ साथ रहे। उसमें भी दादी और मैं और कुछ और लोग थे जो हम साथ साथ प्ले करते थे। और काफी समय तक जितना भी हमारा काम हुआ है दादी सर के साथ में, मैंने जितना भी किया है, मेरी जिंदगी दादी सर से जुड़ी हुई है और दादी सर से ही चलती है। आज भी मैं दादी सर से का बहुत ही बड़ा आभारी हूँ कि उनकी वजह से मैं कुछ अपने कामों में भी कुछ नयापन ले आता हूँ।
तो यहीं पे सर एक सवाल, वो उसे मैं यूज करता हूँ। जी जी, हाँ। यहीं पे एक सवाल आता है नया कि उनसे जुड़ने के बाद और ये नया बोलिए। एक्सपीरियंस आने के बाद आपकी जो ट्रेडिशनल फॉर्म है उसमें चेंज क्या आया, क्या नयापन आया, और किस तरीके से ये आपकी जो ट्रेडिशनल ऑडियंस है उस पर और जो यंगर मॉडर्न ऑडियंस है उस पर क्या फर्क पड़ा? देखिए, ट्रेडिशनल में जो चेंज आया, वो चेंज मेरा आया था दरअसल जब मैं पपेट वर्कशॉप करने गया था फॉरेनर्स के साथ। फ्रांस से, जर्मनी से लोग बाग आते थे, और वो पपेटियर नहीं होते थे दरअसल, लेकिन उनका जो अलग काम जो था, कोई थिएटर आर्टिस्ट था, कोई एक्रोबैट था, कोई डांसर था, कोई वो दरअसल, लेकिन उनके माइंड जो थे वो बहुत ओपन होते थे। तो हम मेरे ट्रेडिशनल पपेट्स को ही लेके जो मैं बताता था उनको, वो तो वो करते ही करते थे, लेकिन मैंने उन्हें उतनी फ्रीडम दी थी कि भैया मेरे पपेट से आप क्या कर सकते हैं, कुछ आप अपनी सोच से। तो वो उससे थोड़ा सा खेलते थे। जब वो उनसे खेलते थे तो मुझे लगता था कि नहीं यार, ये मतलब कि मेरे राजस्थानी पपेट में ये सब भी हो सकता है, ये सब चीजें भी आ सकती है। तो मैंने वहां से कुछ उठाना शुरू किया। फिर जब जो दादी से सीखा था, वो जब मैंने सोचना शुरू किया, मैंने ज्वाइन करना शुरू किया, तो मेरा एक जो पहला प्ले था ढोला मारू, जिसको मैंने किया था, और वो सब सोच जो थी वो श्रीराम, वो उसमें डालने की थी ढोला मारू में, कि भाई ढोला मारू में राजस्थानी पपेट में आज तक कभी इमोशन सीन्स नहीं किए गए। मतलब कुछ कहानियां कहते हुए नहीं डांस करते, अपने अपने आइटम करते हैं, या ज्यादा लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं करते, इससे ज्यादा कोई काम नहीं होता है। लेकिन पहला प्ले था वो, जिसमें हमने पपेट में थोड़े से इमोशन डाले और उसको थिएटर की तरह यूज किया, और उसे उस नजर से भी देखा कि भैया अगर हम अपनी राजस्थानी भाषा में करते हैं तो लोग बाग इसे समझेंगे या नहीं समझेंगे। तो इस वजह से उसके जो गाने के या दोहे के जो राग थे वो भी उसी तरह के डाले गए मूड के हिसाब से, और कुछ सीन्स बनाए गए ऐसे ताकि अगर ऑडियंस डायलॉग्स और गाने से ना समझ पाए तो कम से कम सीन देख के तो ये उनको ये महसूस हो कि भैया यहाँ ये हो रहा है। तो ये देन जो थी ये दादी की और उन फॉरनर्स की थी, जिन्होंने मेरे को थोड़ा सा नयापन दिया, और मैंने मेरे फर्स्ट प्ले में वो चीजें डाली। और आज मैं अपना जो भी काम करता हूँ, जो भी प्ले करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, क्योंकि अमर सिंह राठौड़ देखते 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 दुनिया बोर हो गई थी हमेशा जाती है जी। एक ही एक चीज को देखना, अब वो बोर हो या ना हो, उसका चमत्कार है। आज भी देखते हैं तो एक नएपन से देखते हैं, लेकिन वो एक ही एक स्टोरी को देखते हुए मतलब वो सोचते हैं कि हाँ ये इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, अब ये होगा। तो अब जब भी कोई नया प्ले करते हैं या नया कोई प्रोग्राम तैयार करता हूँ तो जरूरी है कि ट्रेडिशनल के साथ में मॉडर्न कुछ डाल देता हूँ या मॉडर्न के साथ में ट्रेडिशनल कुछ डाल देता हूँ। तो मेरा जो टेक्निक है उनको मैं जरूर यूज करता हूँ, किसी भी तरह से कहीं भी किसी भी पार्ट में उसे डालने की कोशिश करता हूँ जी। प्योर प्ले कभी कभार ही मेरा बनता है कि भैया मॉडर्न में बनाना तो सिर्फ मॉडर्न ही होना चाहिए, तो वो एक अलग ही चीज है, या किसी की एडवर्टाइजमेंट है या किसी की कोई रिक्वायरमेंट है तो बनता है, या प्योर ट्रेडिशनल है तो प्योर ट्रेडिशनल भी वो भी अलग हो जाता है, तो वो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। लेकिन मैं अपने लिए जब बनाता हूँ तो उसमें दोनों चीजें डालने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरा एम रहा है, और ये मेरा एम मेरे ट्रेडिशनल को मिला के और दादी जी के सिखाई हुई चीजों को मिला के, इन सबको लेके ही मैं अभी तक साथ चल रहा हूँ जी जी जी। तो एक आखिरी सवाल दोनों से है, कोई भी दादी सर और पूरन सर, आप दोनों में से कोई भी इसका उत्तर दे सकते हैं कि आपकी जब कोलैबोरेशन हुई और 80s लेट 80s में श्री राम सेंटर में मिले,
ये जो कोलैबोरेशन है, ये जो हमने काम किया है श्री राम सेंटर, उसका नाम था सूत्रधार पपेट थिएटर, और जी। वो अर्ली 80s में था, लेट 80s नहीं, 1980 to 86, 86 में मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, निकल गए थे। और फिर 2-3 जन आए थे, जो आई फॉरगेट हिज नेम, जो मास्क बनाते एनएसटी में, he passed away. Then Shampa Ghosh also came and जी। directed the repertory. Uske baad, I don't know how long it ran. Then they closed it down. I do not know why they closed it down. There is one person who also worked with us, Seema Kapoor. She's right now listening to us from Bombay. She was also part. There were many young people who had joined. और इसका आइडिया ये था कि जब पहले पांच लोग थे, जी वो जी मिक्स्ड लोग थे. There were two, as Puran says, traditional puppeteer, और वो भी शादीपुर से ही थे यहाँ दिल्ली में. So जगदीश जी पूरन थे, पूरन का एक भाई भी आया था. और उसके बाद जो दूसरे लोग थे वो आर्ट बैकग्राउंड या थिएटर बैकग्राउंड से आए थे, और इस तरह से ये कंपनी बनी थी. मुझे एक क्वेश्चन पूरन को भी पूछना है कि जैसे पूरन ने बताया अभी कि पूरन भी मॉडर्न पपेट्री ही डज वेरी वेल एंड ट्रेडिशनल एज वेल. अब फोटोग्राफ्स देख सकते हैं आप. Here you are. This was one of the performances called Circus, and I think puppets from many performances are here. Also, you can see Karen Heeson is right there in the middle as well. She started her puppetry work with Karen with Sri Ram Center. Today, now she is the UNEMA International President. Anil Saxena, Puran नीचे बैठा है ऑस्ट्रिच के साथ, सुषमा, ओम गोसाइन, Madhu, Pushpa, Vijay in the yellow kurta, who used to do all the percussion drums, Nathuram with the pagdi, in Dhola Maru he came with the Ravan Hatta. Then there's Jagdish Bhatt and Girdhari. Girdhari was always the support with lighting, and there used to be Sudhir Pandey, I forget his name. He's still in Delhi. Yeah, go ahead, see the other pictures. They're just group pictures here. This performance, इसमें एक we had a challenge कि we made 13 performances, I think. 2 were directed by guest directors. 3 Dadi, Karen और मैं. 3 were directed by guest directors. One was Vinod had directed a performance called Nina. Then there is Bela Shodhan, who had come from Ahmedabad and directed a piece. And one more person, I can't remember who that was. Gunther Wetzel, who came from Stockholm and did a string puppet, a whole Little Mermaid. So isme Puran, Karen, we had done a circus with umbrellas. We used a lot of objects. जूते से बनाया था show. फिर एक show बना था with umbrellas. This is a circus show which was umbrella. There, this puppet at the big long golden puppet was in a piece called Utsav. Maybe it was the first time, I don't know, I cannot be presumptuous here, but it was maybe the first time that 3 people worked a puppet on stage in India. This came from the training or the workshop I had done with the Japanese master Yoshida in Meshke's school in Stockholm, and we tried to adapt it. It was difficult. We did this whole Bharatnatyam piece called Usha. It was just pure dance. Gayatri Chopra, who's sitting downstairs, who's studying dance, she came to help us with some of the poses. I remember Venu came and saw it and was quite surprised that a puppet could do these positions with the rhythm. It became quite popular. It was part of a larger piece called Utsav. So again, you see these different people in the group. Yeah. Next. There you are again, same, that group. That's the Sri Ram Center. Yeah, at the Sri Ram Center outside. Yeah. Group. Anything else? These are the 3 or 4, right? Pictures. Right. Yeah. So दादी सर यहाँ पे एक और सवाल है कि मेरा क्वेश्चन था पूरन के लिए कि जैसे पूरन ने बताया कि he borders both traditional and modern, right? और पूरन ट्रेडिशनल उसका कठपुतली का है, राजस्थान की
कठपुतली का है। अभी मेरा सवाल एक पूरन को पूछना है कि कोई मॉडर्न पपेटियर कठपुतली सीख के वो कठपुतली चलाने लगे तो आप उनको भी क्या मानोगे, ट्रेडिशनल पपेटियर मानोगे या कठपुतली चलाने वाला पपेटियर मानोगे या क्या? जैसे आप मॉडर्न और ट्रेडिशन कर रहे हो, आपने भी सिखाया है फ्रेंच पपेटियर्स को, और मैंने शार्लेविल में देखा था पूरा राजस्थानी कठपुतली स्टेज परफॉर्म्ड बाय फ्रेंच पपेटियर्स। सो आपको क्या लग रहा है इसके अंदर, ये चीज सब ट्रेडिशनल पपेटियर्स के लिए भी क्वेश्चन आता है आजकल? दादी, मैं दरअसल ये इंग्लिश के शब्द जो है वो कहाँ तक जाते हैं, ट्रेडिशनल किसे कहते हैं? मैं जो ट्रेडिशनल मानता हूँ कि भैया ये जो पैदाइशी जो पपेटियर हैं ये ट्रेडिशनल जो पैदा होते हैं, मतलब जिस फॉर्म से पैदा हुए वो ट्रेडिशनल। बाकी जो ये जितना भी जर्नी है, अगर मैं मॉडर्न पपेट कर रहा हूँ तो वहां मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि भैया मैं हूँ तो ट्रेडिशनल पपेट, लेकिन ये मॉडर्न पपेट मेरे यहाँ से आया है, ये नहीं कह सकता। हाँ, ये जो जर्नी है, जिस तरह से अगर कोई मॉडर्न पपेटियर ट्रेडिशनल कर रहा है तो वो पपेटियर ही है वो पपेटियर, लेकिन वो ट्रेडिशनल नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, इतनी अगर उसमें कुब्बत हो कि भैया वो ट्रेडिशनल पपेटियर से पपेट अच्छा चला सके तो उसे वहां कह सकते हैं कि भैया आप तो ट्रेडिशनल पपेट को भी राजस्थानी ट्रेडिशनल पपेट को ट्रेडिशनल पपेटियर से अच्छा चला रहे, तो आप तो उनसे बड़े। अभी भी फ्रांस में एक लड़का है दादी, सिल्वा करके नाम है उसका, वो मेरे बनाए हुए पपेट है जो मैंने उसे दिए हैं बना के, और उसने खरीदे हैं बच्चे ने, और 3 वर्कशॉप उसने मेरे साथ में की है, और 3 वर्कशॉप में उसने 3 पपेट भी बनाए हैं। एक पपेट बनाया था उसने मैजिशियन, तो वो मैजिशियन में उसने जंगलर को भी जोड़ दिया, हमारे नींबू वाले को भी जोड़ दिया, पपेटियर्स की मीटिंग है, बिग बॉल भी हम रखेंगे, तो पपेट तो मैंने बना दिया, लेकिन उसने जो उसका परफॉर्म जो किया है वो उसने म्यूजिशियन के साथ में, जो एक फ्रेंच म्यूजिशियन है जो सितार बजाता है और तबला बजाता है, उसके साथ में मिलके जादूगर को और नींबू वाले को एक पपेट, जादूगर और नींबू वाला एक पपेट, और तबला और सितार, इन तीनों के साथ में उसने जो कोलैबोरेशन किया वो इतना अच्छा किया कि तबला भी अपने बॉल से बजाता है, वो सितार भी अपने हाथ से बजा लेता है वो, मतलब उस तरह से नहीं, वो तबले में मारा और उसे बार बार उसका टेम्पो बजा रहा है। मैं खुद देख के हैरान कि मुझे मेरे पपेट्स को, मेरे ट्रेडिशनल स्टाइल को ये बंदा इस तरह से भी यूज कर सकता है। तो मतलब कि क्या है कि हर एक के माइंड जो है वो अलग अलग है, लेकिन एक है दादी, चाहे ट्रेडिशनल हो चाहे मॉडर्न पपेट हो, जब तक आप दिल से और दिमाग से काम नहीं करेंगे, इसको सही मायने में समझ नहीं पाएंगे, तब तक कोई पपेटियर नहीं बन सकता। हाँ, अपनी आत्मा से अगर आप काम करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ नया निकलता ही रहेगा, और पपेटियर ही रहेगा, ट्रेडिशनल हो चाहे वो कंटेम्पररी हो। जी, यही मैं सुनना चाह रहा था आपसे, क्योंकि बहुत सारे जगह में ऐसा हो रहा है कि ये ट्रेडिशनल है, ये मॉडर्न है, ये नहीं कर सकता है ट्रेडिशनल, मॉडर्न आर्टिस्ट ट्रेडिशनल नहीं रह सकता है, या ट्रेडिशनल आर्टिस्ट नया कुछ काम कर रहे हैं तो उनको स्पॉन्सर्स बोल रहे हैं कि आपका ट्रेडिशन आप खराब कर रहे हो। ये काफी जगह में हो रहा है, इसलिए ये अच्छी है आपने बात ये की, अभी बात जी। रत्नमाला मैम कुछ कहना चाह रहे थे, बट उनसे पहले एक सवाल सर आप दोनों से है कि आपने जब ये सूत्रधार थिएटर शुरू किया अपना मंडी हाउस में, तो आप दोनों की जो रेपेट्री की कोलैबोरेशन थी उसका मंडी हाउस के थिएटर हब पर क्या असर पड़ा, क्या फर्क पड़ा? See, आज तो it is you can't say Mandi House because everything has changed a lot. But earlier days, Mandi House Circle was a sort of meeting place. A lot of artists would come see. The Sri Ram Center had Puran Acharya, who had a fantastic little cafe, and the only place, a bookshop for Hindi literature, theatre plays, scripts, things like that. So it used to be a meeting place. Or I am sure that people
got influenced. मैं अभी एक चीज बता रहा हूँ आपको, but that was much later from Sutradhar time. I think it was early 90s. I used to be called to do puppetry workshop in NSD, National School of Drama में 2 हफ्ते की या कुछ. और in that first workshop, there were 2 people. I mean, there were many, but there were 2 people, Royston Abel and Adil, who's a very good, famous now actor on films. And if you are thinking, it ran into problems, but in the last 2-3 months, Royston came back to Delhi and he wanted to do a large production with huge puppets for the Red Fort Sound and Light show. It is happening now in a different way. Royston has left that project. But how did it happen? Because of that little workshop jisne Royston had done, and then he had worked with Shadipur puppeteers. So unka influence ek tha, and he said, I worked with actors, I want to try a different medium. So आज बहुत सारे theater groups masks puppets use कर रहे हैं, dancers are using us. First time puppets were being used was by Asta Devu when we did a production Thanatomorphia. मेरा argument यही होता है, काफी dancers उसके बाद आए हैं, classical dancers, कि हमें puppet use करना है. तो मैंने ये पूछा उनको कि what do you want the puppet for? सिर्फ प्रॉपर्टी की जैसे आपको खड़े करना है सेट की जैसे, या पपेट के भी कुछ उसमें जान है या कैरेक्टर है और यूज है, या आप ही सोलो कर रहे हो और पपेट पीछे बस खड़े हैं? तो these are questions when we are mixing theater and puppets together is very important to ask, because a lot of पूरी दुनिया में अभी theater people and puppeteers and dancers are mixing things, but puppeteer या तो उसके अंदर सिर्फ प्रॉप रह जाता है, या तो एक पपेटियर इज वर्किंग विद कर रहा है तो फिर ही सीज कि किस तरह पपेट को उसमें यूज करना है, सिर्फ इफेक्ट की तरह या एक्चुअली उसकी कोई जरूरी है. इसलिए these are important questions जो हमेशा आते हैं हमारे मन में कि when we are using it, why are we using puppetry? कोई चीजें पपेट कर सकता है बहुत ही अच्छी रीत से, और कोई चीज एक्टर बहुत ही रीत से कर सकते हैं अच्छी, और जो दोनों का मेल कुछ हो जाए तो फिर उसमें से there's something nice comes out of, not just effect. This is important. Right. दादी एक चीज मैंने देखी है, ये दरअसल आप ही के साथ रह के थोड़ा सा पपेट के बारे में पता चला कि पपेट क्या है. मैं जहां तक जानता हूं, जो पपेट कर सकता है वो एक्ट्रेस नहीं कर सकता. नहीं. मेरी जहां तक सोच है कि पपेट में वो ताकत है कि वो चाहे जिसे फेमस कर सकता है और चाहे जिसे बदनाम कर सकता है. अगर किसी की पोल खोलनी हो या किसी का नाम रोशन करवाना हो, या किसी बच्चे को पढ़ाना हो, तो जितना जल्दी बच्चा ये काम कर सकता है, उतना कोई लाइव पर्सन या थिएटर एक्टर या फिल्म एक्टर नहीं कर सकता. और जहां तक मैं समझता हूं कि अगर ये इतनी बड़ी जगह है, इतना बड़ा इसकी ताकत है पपेट की, कि भाई अगर एक्टर किसी की तरफ उंगली करता है तो उसके ऊपर 100 क्वेश्चन निकल आते हैं. लेकिन पपेट एक ऐसी चीज है, अगर किसी में भी उंगली करके पकड़ नहीं पाता है, फिर भी हम ये नहीं सोच पाते. इसकी एक वजह है, बिकॉज पपेटियर at least it is पूरा इंटरनेशनल ये एक चीज है कि द पावर ऑफ द पपेट जो है, वी कॉल इट ऑब्जेक्टिव थिएटर. मतलब एक दर्पण है पपेट जिंदगी का, और इट्स नॉट रियल बट इट इज प्रोजेक्टिंग. एक्टर जब स्टेज पे आता है एंड ऑडियंस जो स्टेज पे देखते हैं एक्टर को, तो वो सब्जेक्टिव होता है. मतलब एक्टर इज फ्लैश एंड ब्लड और ऑडियंस इज ऑल्सो फ्लैश एंड ब्लड. तो एक्टर का ईगो पहले आता है, उसके बाद कैरेक्टर आता है. और पपेट में ऐसा कुछ नहीं होता है. पपेट में डायरेक्टली द कैरेक्टर और द पपेट्स मेड, वेदर इज ट्रेडिशनल और मॉडर्न, उसका कलर है, उसका जो आकार है, वो डायरेक्ट बोलता है, और इसीलिए ये होता है. दूसरा ये भी है कि एक बेजान चीज को आप जान देते हो तो उसमें भी एक खिंचाव आता है. सो दिस इज ट्रू दैट व्हेन द पपेट एंड द एक्टर, बट जब दोनों का मतलब कुछ अच्छी चीज होती है स्टेज पे, there is definitely something there to see as well.
जी, Manish, any questions or audience? Very well said, Dadi and Puran. Very wise words, experienced words that you have given us. And whether traditional or modern, like you said, a puppeteer is a puppeteer. And you do say that puppets have no ego. Very nice. Yes, Manish, please continue. Yes. Puppeteers So have an ego sometimes. right. So before opening the questions to the house, we have last 5 or 10 minutes more for the session. You can either post your questions in the chat box, or you can raise your hands and I can allow you one by one. So we have a question in the chat box from Padmini Sufurti Theatre. The question is to Dadi. Tell us about puppetry course or institute in Mumbai in one of the university. I do not know much. We have not been given much information. This is Meena Nayak. Meena Nayak started a course in puppetry, and I think iska kuch link hai, or the university gives some certificate or something. But we have seen that, but we have not had many shared experiences. She hasn't shared. We know that it's happening, but that's it. But training courses jo ho rahe hai, Unima India has done a lot of mentorships. Puran ne kiya hai, 2 hafte kiye. Different traditional puppeteers have done it with some modern artists. I did it with youth of traditional puppeteers to use production mein naya material. तो ये चीजें कर रहे हैं. और यूनिमा इंडिया में ये भी हो रहा है कि पपेट ट्रेनिंग या पपेट स्कूल की नीड है या नहीं है, और जो है तो किस तरह के उसमें शिक्षा होना चाहिए. Where will it be situated? How can people leave their jobs? काफी काम करते हैं और फिर लंबे टाइम के लिए एनरोल हो सकते हैं या नहीं. तो इसलिए वो सोच रहे थे कि इट इज ऑलवेज बीन नाइस टू डू शॉर्टर वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. maybe those same people should come for another, like that. That is a way to do it, instead of doing one long 1 year 2 years something like that, because हर puppeteer को performance करना पड़ता है और रोजी रोटी भी कमानी पड़ती है. So you cannot leave that. It's not easy. So performance के बिना there is no use. You're making puppets to just sell और एग्जीबिशन में डालो. बट मेन चीज है पपेट चलना चाहिए, शो होना चाहिए. ये बहुत ही जरूरी है. और ये हमारे एकेडमीज है या सबको ये बहुत जरूरी है कि फेस्टिवल्स भी जो करते हैं पर उसके साथ ट्रेनिंग वर्कशॉप्स भी करिए तो बहुत अच्छी बात होती है. Right. Thank you, sir. Thank you for the answer. We have another question in the chat box for Puran sir. It is from M.R. Srinivas. So question to Puran sir. Puran sir, आपके लिए सवाल है कि when you have transformed from traditional puppetry to modern puppetry. हिंदी में बोल. हाँ, मैं करता हूँ सर. जब what are the difficulties you face? हाँ, तो जब आपने ट्रेडिशनल से मॉडर्न पपेट्री की तरफ ट्रांसफॉर्म हुए, मतलब कि अब चेंज आ रहा था, तो क्या डिफिकल्टीज आपने फेस की, क्या मुश्किलें आई हैं आपके प्रैक्टिस में? देखिए, नहीं, मेरा चेंज नहीं आ रहा था. दरअसल वो तो मैंने सीखा था दादी के साथ रह के. श्रीराम सेंटर में मैंने ज्यादातर मॉडर्न पपेट का ही किया, और वहां हमने ये भी नहीं देखा कि कौन सा मटेरियल है कौन सा मटेरियल नहीं है. मुश्किलें कोई नहीं आई, क्योंकि मैं ट्रेडिशनल पपेटियर हूँ. मैं लकड़ी का काम कर चुका हूँ, मैं मिट्टी का काम कर चुका हूँ, मैं पेपर मिश्री का काम कर चुका हूँ. तो ये सब काम तो मेरे को आते थे पहले. और मैं वुड कार्वर हूँ, इसलिए मेरे हाथ बहुत शार्प थे चीजें बनाने में. लेकिन हाँ, मैंने मटेरियल यूज नहीं किए थे कि भाई मटेरियल क्या क्या होते हैं. तो मटेरियल का जो पता चला वो दादी के साथ मिलकर रह के चला कि भाई ये मटेरियल हम इन सभी चीजें बना सकते हैं. जो मटेरियल मिले हम उससे बना सकते हैं. लेटेक्स इसे कहते हैं, थर्माकोल इसे कहते हैं, पेपर की पपेट इसे कहते हैं, या लोहे की
मास बन सकता है, स्पंज है। तो ये चीजें जो है वो मैंने वहां सीखी। और कुछ बाहर जितनी बार हम गए थे शोज वगैरह करने के लिए, जब श्री राम सेंटर में थे, जितने भी हम बाहर शोज देखे, दूसरे पपेटियर्स के शोज देखे, उनके पपेट बनते हुए देखे, तो उनके मटेरियल को लेके और उनके बनाने के तरीके को लेके भी कुछ सीखा। क्योंकि मेरा पता नहीं जहन था या ये था कि मुझे अच्छा लगता था दूसरों की चीजों को सीखना। जो भी चीज मिलती थी मैं उसे लेता हूँ हमेशा, कुछ भी, चाहे वो गलत हो या सही हो। और मैं सोचता हूँ कि उसे मैं कम से कम किसी ना किसी तरीके से किसी एक पपेट में यूज करके देखूं, उसे डाल के देखूं। तो मैं जब वो जी। डालता था अपने पपेट में, अपने हम्म। क्रिएशन में, तो वो मेरे हम्म। को कुछ अलग दिखाई देता, क्योंकि जो उन्होंने बनाया है वो अलग हम्म। था। और हम्म। मैं अपने स्टाइल में, जिसमें के मेरी जो सोच है वो ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल पपेट्स में अगर कुछ मॉडर्न घुसता है तो वो डिफरेंट हो जाता है अपने आप में ही। वो अगर मान लीजिए एक मैंने राजस्थानी पपेट ही बना लिया, तो मैं ये दिखा रहा हूं तुम्हें, ये राजस्थानी पूरा वो हमारा अमर सिंह राठौड़ का पुराना puppet। का लगता है नेटवर्क इज वीक। वो उस तरह की नहीं होती थी बहुत, और दो हाथ ऐसे होते थे, आधे आधे। Frozen? ये मॉडर्न, इसमें कुछ और चीजें भी डालनी पड़ गई अलग से। तो क्या है कि ये ट्रेडिशनल एक अपने आप में ही एक उसका दायरा है, वो एक जैसा ही दिखाई देना चाहिए हमेशा। और उसकी मैनिपुलेशन भी उसी तरह की होनी चाहिए। लेकिन मैनिपुलेशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लोग अलग अलग होते हैं, इसलिए उनकी अलग अलग मैनिपुलेशन हो जाती है। लेकिन जहां जी। उन पे कुछ चीज आई थिंक उनका Technical problems? नेटवर्क फ्रीज हो रहा है उनका। ठीक तो है, then you can continue with यस, the next question. नेक्स्ट या अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल एक अदनान चलिए। हुसैन की तरफ जी। अ- अदनान हुसैन की तरफ से है, सेइंग आई एम एन हाँ, एनिमेटर and had the pleasure of making short film with Puranjee's हाँ, हाँ। puppet and Sindhi poetry called Ramkali. So what kind of efforts are being made to bring puppetry into film? तो उनको क्या करना होगा puppetry को films की तरफ लाने के लिए? वो पूरन जी के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं और एक पोइट्री है रामकली, उसको मिला के एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाह रहे हैं। नहीं भाईजान, ये फिल्म तो मैं बना चुका हूँ। बन चुकी फिल्म है आप बना आपका सवाल जी जी, तो आप अपना सवाल प्लीज पूछिए अपना तो सवाल। पूरन जी ने, मैंने डिजाइन्स भेजे थे पूरन जी को, और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत पुतलियां बना के भेजी थी। तो उस पर मैंने फिल्म बनाई थी। ये तो मतलब पूरी चीज जानते हैं। तो मैं ये जी चाह रहा था कि ऐसी कौन सी कोशिशें जारी हैं जी। जिससे कठपुतलियों को आप फिल्मों में अगर आप ला रहे हैं, कोई कोशिशें हैं जारी, या क्या काम हो रहा है इस हवाले से? जी, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग योर क्वेश्चन, प्लीज सर। अदनान जी, पहले तो सबसे पहले नमस्कार, अच्छा लगा आपको देख के। नमस्कार। और हमारी तरफ से तो बहुत ही इस मामले में पीछे है कि हम फिल्म बना के या कोई छोटी क्लिपिंग बना के हम कुछ कर पाए या उसे सेल बेच पाए या किसी को दिखा पाए, क्योंकि मेरे को ये आइडिया नहीं है। हाँ, आइडियाज मेरे को ये है कि भाई पपेट बना सकता हूँ, उसे उसके सीन्स अच्छे बना सकता हूँ, लेकिन ये बाकी जो कैमरा का, लाइट का, ये जो काम होता है ये मुझे नहीं आता। और अभी तक पपेट के लिए मेरे यहाँ से इस तरह का कोई नहीं बन पाया जिस तरह से आपने रामकली बनाई। क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा काम किया, आपने डिजाइन दिए, अपने पपेट मेरे से बनवाए, और फिर अपने आप ही आपको मालूम नहीं है कि पपेट कैसे चलता है, कैसे चलाया जाता है, लेकिन फिर भी आपने कोशिश करके एक फिल्म बनाई और फिल्म को आपने दिखा भी दिया और लोगों ने काफी सराहा भी उसे। और अगर इस तरह से अगर हम भी अगर ये करने लगे तो वाकई बहुत एक अच्छा सा शुरुआत हो सकती है। और वैसे भी आजकल तो सारा ऑनलाइन हो गया है, हम बात कर रहे हैं, अगर मिल के बात करते तो ज्यादा मजा आता है एक दूसरे को देख के।
आज भी बात कर रहे हैं तो फोन पे ही कर रहे हैं। तो ये ऑनलाइन सिस्टम जो है वो इसीलिए है कि भैया जो इसे पूरी तरह से जानता है वो तो इसे इसके साथ चल पाता है। मेरे जैसा बंदा तो मैं किसी एक बंदे को बिठा के रखा हुआ कि भाई ये बंद हो जाए तो ऑन कर दो, आवाज कम हो जाए तो ज्यादा कर दो, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मैं ये चाहूंगा, हाँ मैं सच बता रहा हूँ, मैं ये चाहूंगा कि अगर हमारा ये आ, आम लोगों के साथ में इंटरेक्ट नहीं हो पाता है, आंख से आंख नहीं मिलके हम काम कर पा रहे हैं, तो हमें भी कुछ ऐसे पार्ट्स करने चाहिए जो कि हम ऑनलाइन मतलब अपनी चीजों को दिखा सके और उसे सही मायने में प्रेजेंट कर सके। लेकिन अगर दिखाएं तो सिर्फ खाली फिल्म समझ के नहीं, या कोई स्टोरी समझ के नहीं, या बच्चों के लिए समझ के नहीं, कठपुतली को समझ के, मतलब पुतली को समझ के कि उसकी ताकत क्या है, उसका सही शॉट, सही डिजाइन, सही मैनिपुलेशन, जिसमें कि वो जिंदा लगे, उसे तो अगर आप शूट करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है क्योंकि दुनिया देखती है। और आप अगर बच्चों के लिए करना चाहते हैं तो बच्चों के लिए तो फिर आप अगर उसे हिला भी लेंगे तो भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार एक खिलौना है जो हिल रहा है। लेकिन अगर हम इसके लिए कुछ करें तो ज्यादा अच्छा है, ताकि ऑनलाइन हमारा ये सभी लोगों का जो काम है, कठपुतली का जो है, वो आगे से आगे पुश हो और वो भी ऑनलाइन काम करना शुरू करें। जी, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर आंसर। जी अगले दो सवाल हम एक साथ ले सकते हैं, एक सुबीन जी का है और पद्मिनी जी का कंटिन्यूटी में है उनके पुराने सवाल से ही। ये इट्स अबाउट ट्रेनिंग प्रोग्राम, लेवल ऑफ स्कूलिंग, प्लानिंग फॉर टीचर्स। और पद्मिनी जी का अपने पुराने सवाल से लिंक है कि दादी सर, इज इट अबाउट योर एसोसिएशन विद SNDT ट्रेनिंग और इसको लेके? I do not know what she's mentioned about it. Sorry, Dadi, I somewhere but- happened to read or get to know. Somebody shared that you had conducted a training over there at SNDT. No, that's reason somebody from that institute had told me. There may have been a workshop, but there may be something like that. What my association with SNDT in Mumbai at Juhu was when the whole SNDT was being built, 1978. I was just going there twice a week to do a workshop in drawing and sketching. And maybe you're right, we did a workshop there in simple puppetry. We had done it 78, but that is it. After that, ऐसा कुछ नहीं हुआ है. स्कूल का जो ट्रेनिंग हो रहा है वो किसी भी हालत में है. शंपा जी, all of it started with CCERT, Center for Cultural Resources and Training, दिल्ली में, जहाँ गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को 2 हफ्ते के लिए बुला के सब्जेक्ट टीचिंग थ्रू पपेट्स. बट उसमें भी आपको ये देखना पड़ता है, एज पूरन सेट, के पपेट किसके लिए है, बच्चों के लिए है, शिक्षा के लिए है. टीचर जब वापस घर जाते हैं उसके स्कूल में, गांव में, तो उनको कोई मटेरियल्स नहीं मिलते. यहाँ तो सब साथ मिलते हैं, खरीद के देते हैं. तो मेन थिंग इज कि आप किस चीज के थ्रू पपेट बना सकते हैं. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज मीडियम एंड द मैसेज, जो मिल सकता है या नहीं. क्योंकि आज क्या है कि ठोस के कुछ भी बोलो, पपेट्री के थ्रू ये भी बोलो, वो भी बोलो. एक बार ये भी आया था, स्किन एलर्जी पपेट्री के थ्रू बोलो. तो एक्टर जो कर सकता है वो पपेट नहीं है, पपेट जो कर सकता है वो मे बी एक्टर कैन नॉट. सो ये आपको इनको सोचना चाहिए कि पपेट्री के थ्रू भी हम जो बताने जा रहे हैं वो किस तरह बताने जा रहे हैं. सम इयर्स अगो इशारा ने HIV और ड्रग अब्यूज पे किया थे शोज. उसमें सिर्फ पपेट्स नहीं था, ऑब्जेक्ट्स थे और चीजें थे, स्ट्रीट थिएटर जैसे थे. और उसमें चैलेंज यही था कि जो मैसेज जो बोलने जा रहे हैं और जो माध्यम है उसका मिलावट, नहीं तो बहुत ही बोरिंग हो सकता है, भाषण हो जाता है और कोई देखने को जरूरी नहीं है. तो ये जो स्पॉन्सर करते हैं उनको भी सोचना पड़ता है कि क्या किस तरह ये चीजें को करे. भाषा है तो ट्रेडिशनल पपेटियर्स अलग अलग स्टेट्स में है, खुद अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो देन हाउ यू कैन यूज द ट्रेडिशनल puppet color if you want to give
मैसेजेस। और इंडोनेशिया में, चाइना में और दूसरे कंट्रीज में बहुत सारा काम इस पर ट्रेडिशनल पपेटियर्स ने किया है। उसमें टेक्नोलॉजी भी आई है, जैसे पूरन कहते हैं। हमारा ये यहाँ हो गया कि टेक्निक एज पूरन से आज हमें भी, आई एम ऑल्सो हैविंग अ प्रॉब्लम, हाउ डू आई शेयर द स्क्रीन, ये नहीं हो रहा है मेरे से। सो that is something that workshops should be done. Atul will tell us that even some of the mentorship workshops जो कर रहे थे यूनिमा इंडिया, उसमें थोड़ा बहुत ये छेड़ा था, बट उसमें भी नया मटेरियल, सिंपल मटेरियल था, OHP था, या Atul has done a stop action, Stop motion. puppetry. There's a animator Delhi mein, I've just seen in Gurgaon yesterday, Nitin Donde. He's doing fantastic work with stop action cutout animation films with 9-year-old, 8-year-old children, or everything. He's got an app. App I believe is free to download on the phone, और इन लोग पूरी फिल्म बच्चे उनकी बैकड्रॉप बना रहे, कटआउट करके, कटआउट होगा तो शैडो पपेट जैसे है, या तो इवन 3-dimensional figures करके, but those children are so good at using that app, and they found the way, and they're making fantastic stories. If something like that was taught even to puppeteers करने, और ये हुआ है, I would say कि puppeteers in South India are more adept at using technology than all of us in North India. ये पक्का है. The puppeteers Kerala, इधर उधर के puppeteers, they're using technology, robotics भी use कर रहे हैं, अलग अलग चीज कर रहे हैं. तो ये मैंने सोचा है कि बेटर वहाँ के पपेटियर्स फोन पे और इनके साइट्स और इंस्टाग्राम पर काफी काम कर रहे हैं. और पैंडेमिक के टाइम में इन्होंने काफी छोटे क्लिप्स बनाए थे, बहुत अच्छे. त्रिपुरा पपेट थिएटर, मेनी ग्रुप्स ने पैंडेमिक टाइम पर अच्छे छोटे क्लिप्स बनाए थे. बेचारेपन गवर्नमेंट कुड हैव यूज्ड दैट. कल्चरल मिनिस्ट्रीज 1 या 2 स्टेट्स में they managed to use it and give it, नहीं तो बस फ्री में लगा दो. यही होता है कि पपेट्री है, फ्री में करो, ये बहुत पपेट्री. देखो राजस्थान में, द फेस ऑफ राजस्थान में कोई भी आप पब्लिसिटी में देखो तो राजस्थानी कठपुतली है, जो भी है, बेचने वाली कठपुतली है, जो भी है, पर उसका पिक्चर आता है. बट देन देयर इज नॉट मच, देयर हैज टू बी मोर सपोर्ट, गिव देम समथिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम करिए उनको. पूरन एक निकला है, लेट मी टेल यू, शादीपुर से, बट बहुत सारे पूरन नहीं है, and Puran had the opportunity, उसका स्किल था, उसका दिमाग था कि कैसे मैं क्या कर सकता हूँ इसके साथ. तो सबके साथ नहीं होता है इस तरह. तो दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि कला है, आर्टिस्ट बहुत सारे हैं, बट अपॉर्चुनिटीज उनके पास नहीं है करने की. और काफी होता है. एक बार बहुत पहले उदयपुर में पूरन भी था, कोमल कोठारी, और वी हैड डन अ वर्कशॉप विद राजस्थानी पपेटियर्स उस एरिया के राजस्थान. और कोमल जी का यही आइडिया था कि ओके, बर्थडे पार्टी का शो इनको मिल रहा है, ये मिल रहा है. अभी हर बार घोड़ा और अनारकली और अमर सिंह ने और भी कहानी बना सकते हैं, नहीं तो और भी कहानी के लिए अलग कैरेक्टर्स कैसे कर सकते हैं. कोमल जी सेड एनिमल कैरेक्टर्स, हाथी, घोड़ा, ये सब स्ट्रिंग पपेट में बहुत अच्छे बनाते. पर सर हर पपेटियर को एक ये किया था कि 3 पपेट आप बनाइए आपके ही स्टाइल में. एक खड़ा हुआ राजस्थानी पपेट बट एनिमल फेस, वो बना पाएंगे. दूसरा एक था कि आपका एक चलने वाला 4 पैर वाला एनिमल तो बनाया, पर किसी ने, राजस्थानी पपेटर ने पहली बार ऑक्टोपस बनाया, स्पाइडर बनाया, अलग अलग चीजें बनाई. एक घोड़ा बनाया था बहुत सुंदर, वो बर्मा से उसकी टेक्निक लेके हमने की थी. बट दे वर, इट वाज इंटरेस्टिंग फॉर देम टू डू. और एक फैंटेसी कैरेक्टर, और काफी चीजें उसमें निकली थी कि मतलब लोग बना सकते, उनको थोड़ा हेल्प करे या आइडिया दे तो बहुत सारी चीजें हो. पर उसके बाद क्या होता है, then they have to do a show or something like that, नहीं तो बस बैठ जाते, डब्बे में पड़ते, ऐसी चीज है. ये बहुत मुश्किल प्रॉब्लम आती है आजकल सबके लिए. ये मॉडर्न पपेटियर्स के लिए भी सेम प्रॉब्लम. So we have last, दादी
दादी जी सर से बात करना चाहता हूँ। जी जी पुरन सर बोलिए। दादी, प्रॉब्लम ये हम सबके लिए ही है, आपके लिए भी है, और हम जो ट्रेडिशनल पपेटियर है हमारे लिए भी है। लेकिन क्या ये प्रॉब्लम हम हमेशा पूरी जिंदगी सहते ही रहेंगे क्या? ये कुछ तो आगे हम, ये तो हाँ, सवाल पूछना है, सबको पूछना है, पपेटियर को भी पूछना है मैं कि पपेटियर को ही पूछ रहा हूँ। हाँ पपेटियर जितने भी है हमारे, जितने भी है, चाहे वो हम हैं और चाहे वो आप हैं, और हमारी जो एक जिंदगी की जो स्थिति बनी रही है कंप्रोमाइज करने की, हर चीज में कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि काम मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। लेकिन अब लगता है कि अगर हम या तो जो जो थोड़े बड़े बड़े जिनके नाम हैं, जो गवर्नमेंट में दिखाई देते हैं या वर्ल्ड पे दिखाई देते हैं, वो अगर इन चीजों के बारे में कुछ सोचे और पुश करे तो शायद ये पपेट जो है वो ऊपर तक जा सकता है, अपनी एक जगह बना सकता है। या सारे पपेटियर्स मिलके हम सब इसको पुश करने की कोशिश करें तो शायद हो सकता है। या ये अगर सरकारें मुझे, हमारी मुझे लगता है पूरन कि थोड़ी सी मदद करें हम कि भाई लोग हमें स्कूल्स, कॉलेजेस और यहाँ कुछ काम दिए जाए। हाँ, काम आवाज नहीं आ रही दादी। काम काम की प्रॉब्लम है। देयर हैज टू बी इंट्रोडक्शन ऑफ पपेट्री इन स्कूल्स। पेपर पर तो सब है कि ये करना है, क्रिएटिव ड्रामा, पपेट्री, पर वो हो नहीं रहा है। दिस इज इम्पोर्टेंट, बट पपेटियर्स के भी फॉल्ट है, मतलब कि हम अपना काम इज्जत से नहीं लेते हैं, और एज पूरन से इकट्ठे होके कुछ पुश कर रहे। आई डू नॉट नो इफ इट्स पॉसिबल और नॉट, बट इट वुड बी गुड। अभी तक हमेशा हम ये सोचते रहे कि ऊपर से कहीं से हमें कुछ मिलने वाला है, ये करना है, ये करना है, ये एटीट्यूड निकल जानी चाहिए, और आपको अपना काम दिखाना पड़ता है, और कोई रीत नहीं। आप आई कैन ओनली स्पीक अबाउट शादीपुर और दिल्ली। देर आर, मे बी आप गिन सकते हो पपेटियर्स जो अच्छी क्वालिटी का पपेट कर सकते हैं। There are many traditional puppeteers there, the many some किसी ने काम छोड़ दिया है क्योंकि उनको मिलता नहीं है काम, शोज और बेचने का काम करते हैं। तो it is everywhere that problem is there. There's so many shadow puppeteer families who have in Andhra and all selling their puppets because उनको shows नहीं है कोई ये। तो शो को कैसे उठा सके या उसका प्रोडक्शन क्वालिटी कैसे अच्छी बनाए, क्योंकि किसी ने पूछा आज के जमाने की ऑडियंस और पहले ऑडियंस बदल गई है। ऑडियंस को फिल्म टेलीविजन का सब स्वभाव हो रहा है, तो आपको दोबारा लाना है, किस तरह लाना है? क्वालिटी प्रोडक्शन अब नहीं बनाओगे, और एक सेकंड, और क्वालिटी नहीं प्रोडक्शन, नहीं, क्वालिटी, दादी दादी दादी, एक सेकंड पूरन, एक सेकंड। हाँ ठीक है, आपका ठीक है। प्रोडक्शन, क्वालिटी प्रोडक्शन होगा तो ऑडियंस है हाँ देखने के लिए। अच्छा हाँ प्रोडक्शन है और पपेट अच्छा चले और कुछ कहानी है उसमें, कुछ ऑडियंस को मिलते हैं, तो देयर इज एन ऑडियंस टू सी। ऐसा नहीं है कि नहीं है उसमें, राइट? हाँ, तो वही वही क्या कहा। अभी मैं वर्कशॉप करके आया हूँ अहमदाबाद में, आनंद यूनिवर्सिटी करके है। तो वहां मेरे पास 14 बच्चे थे, 14 बच्चों ने पपेट बनाए अपने खुद। और मैं एक बहुत बड़ी बात ये है पपेट के लिए, पपेटियर्स के लिए है, सब पूरे भी जितने पपेटियर्स हैं, क्योंकि टाइम जो वहां रखा गया था स्टूडेंट के लिए वो 10 से 2 बजे तक का था। लेकिन उन्हें काम में इतना मजा आया कि 10 से 2 की बजाय 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, और 6 से 8, 9, 10 हुआ। मतलब मैं निकल जाता था, बच्चे काम कर रहे हैं। तो मतलब काम, ये काम जो है ना पपेट का, वो इतना बड़ा काम है कि इसमें अगर एक दफा आदमी अपनी आत्मा से और मन से घुस जाता है ना, आर्ट डिजाइन के बच्चे वो उसमें काम करते रहे। और उन्होंने लास्ट दिन डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाया, और बट इतने कम दिनों में, मतलब 14 दिन की वर्कशॉप, 14 दिन में। तो एक पपेट का ये नहीं है कि लोग बाग उसे पसंद नहीं करते हैं। जब उन्हें पता चलता है और वो सही मायने में उसे जानने लगते हैं तो वो अपने दिल से काम करना शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, हमें पुश करना है, या सरकारों को पुश करना है, या किसी एक संस्था को दिखाना, इसे आगे पुश करो ताकि हर कोई इसे जाने।
पूरन, ये सीमा कपूर एक सवाल पूछने जा रही है, बट ये आपने ठीक कहा, जो आपने वर्कशॉप की वो एक अर्बन सेंटर, एक सिटी में यूनिवर्सिटी के आर्ट स्टूडेंट्स है या इन लोग ने लिया है, उनकी इंटरेस्ट है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि काफी ट्रेडिशनल फैमिलीज के बच्चे हैं, आपके तो कर रहे हैं, मॉडर्न भी कर रहे हैं, सेसमी स्ट्रीट भी है ट्रेडिशनल, बट बहुत सारे हैं जिन्होंने काम छोड़ दिया है क्योंकि काम मिल नहीं रहा है या तो इच्छा नहीं है। आई डो नॉट नो क्या है, बिकॉज मुश्किल तो है, ये नहीं है कि नहीं है, बट इसी चीज में मैं, आप ट्रेडिशनल पपेटियर्स हमारे पूरे इंडिया भारत में देखो तो आप गिन सकते हो कि कौन से पपेटियर्स का काम चल रहा है, और आप उनका काम देखोगे तो यू विल सी प्रोडक्शन क्वालिटी, यू विल सी सम मोर इनोवेशन, यू विल सी पपेट्स चलती है और ऑडियंस इसीलिए देखने आती है। तो आर्टिस्ट का भी है ना, सेम अमर सिंह राठौड़ है या रामायण है, पर ये आर्टिस्ट का, इसका काम और इसके पपेट्स अलग है और इसके अलग है, तो लोग है। सीमा वांट्स टू आस्क समथिंग। Yes. So we have questions in our listeners who raised hand. So Ramlal ji, you can speak. You can ask your question. Ramlal ji. रामलाल जी, बहुत बहुत नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। दो लेजेंडरी को मैं देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, और मैं बहुत सालों से आपका पीछा कर रहा हूँ। जब आपका जूतों वाला कार्यक्रम श्री राम सेंटर पे बना था तो मैं बहुत छोटा बच्चा था, तब आया था और मैंने देखा था। तब से मैंने अपने कठपुतलियां जलाई थी, धागे वाली कठपुतलियां मैं करना नहीं चाहता था, और वो जलाई इसलिए थी कि उसमें रिस्पेक्ट, और मेरे पास कोई ऐसी स्थितियां नहीं थी। तो मैं थोड़ा सवाल पूछने से पहले अपने बारे में बता रहा हूँ। और उसके बाद में मैंने पपेट्री को फिर से जैसे पूरन जी ने कहा, आप लोगों को देख के, आप मेरे दोनों रोल मॉडल हैं और आपको देख के मैंने सीखा है और मैं कर रहा हूँ अभी तक। वो एकलव्य की तरह आपको दूर से देख देख के सीखा। अगर आपके साथ मुझे रहने का मौका मिलता तो शायद मेरी जिंदगी में कठपुतली का और स्थान होता। और कठपुतली जैसे आपने कहा है, बहुत इसमें बहुत सारी चीजें पपीटियर को भी करना चाहिए। और आपने मेरे सवालों के, जो मैं पूछना चाह रहा था उस सवाल का मुझे आंसर अभी दादी जी ने दिया बहुत अच्छी तरीके से। पपीटियर को भी आगे आना चाहिए, उसको करना चाहिए। लेकिन फिर भी जैसे दादी जी कह रहे हैं बार बार में कि वो जो हमारे भारत की पहचान ट्रेडिशनल पपेटियर है, आज पपेट्री पे इतना सारा काम हो रहा है, तो इसके लिए कैसे कॉमन या कैसे क्या ऐसा हो जिससे कि वो ट्रेडिशनल पपेट के लिए कुछ, या वो पपेटियर की लाइफ के लिए, क्योंकि बहुत बुरी जिंदगी में। मैं बताना, थैंक यू। मैं बताना, मैं एक, I will give you an example, और अतुल is also here, he will remember this also। और ये किसी एक कौम या किसी एक ट्रेडिशनल पपेट स्टाइल के अगेंस्ट नहीं है, बट जो यूनिमा का मेंटरशिप हुआ था जवाहर कला केंद्र में इन जयपुर, राइट, और ये प्रोग्राम जैसे पूरन ने मसूरी में किया था, मैंने किया था फॉर यूथ, यंगर ट्रेडिशनल पपेट फैमिली के जो परफॉर्म कर रहे हैं अभी, उनके लिए था एक वर्कशॉप। 10-12 आए थे फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। इसमें they wanted to try production technique, जैसे पूरन की टेक्नोलॉजी है या ये है या शैडो पपेट, इसमें मैं क्या बेटर कर सकता हूँ, इसमें क्या मैं कर सकता हूँ। बिकॉज इट वॉज एट जवाहर कला केंद्र, हमने we said there are also young राजस्थानी पपेटियर्स, हमने सजेस्ट किया था कि दिल्ली में 1-2 है जो यंग पपेटियर्स, इनमें दाखिल होना चाहिए। बट that time, I forget his name, he passed away. He said कि no, as we are doing the whole program, ये अच्छी बात होगी कि जयपुर से ही ले puppeteers। Very good। 3-4 आए, रोज बैठे और they would run away, they would go away। इसमें बहुत सारा, हम सुबह को शुरू करते थे 7-8 बजे और रात को चलते थे, क्योंकि रेसिडेंशियल कोर्स था, लोग सब वहीं रह रहे थे और जयपुर वाले जयपुर में ही रह के आते थे, चले जाते थे। अब रंजना जी और अनुरूपा जी और ये सब थे। सो वी सेड कि लुक, हमने उस टाइम में we were not just doing puppetry, पर कलर पे, साउंड पे, प्रोजेक्शन पे, अलग अलग चीज पे काम किए कि ये चीज आप कैसे अपना पपेट बनाते हैं, तब आप सोचोगे वजन है, मटेरियल है, सब कुछ। अरे हमें तो सब कुछ आता है, ये एटीट्यूड था। ओके, ठीक है, आप आके देखो। अब दूसरे जो यंग आए थे वो सब
बन के बना रहे थे और सबने 2-3 मिनट के एक छोटा सा पीस बनाया था आखिरी में। इनको 4 बजे चले जाना पड़ता था क्योंकि उनको होटल में काम था। तो ठीक है, रंजना जी से 4 बजे चले जाइए, आपका होटल में काम है, पर कल सुबह को यू हैव टू कम हियर ऑन टाइम। इफ यू आर डूइंग द वर्कशॉप यू हैव टू कम. They wouldn't come. So then even the JLK fellows said that forget it. Then ऐसा होगा तो they should not be here. So after 5-6 days they didn't. आखिरी जब शो इन लोग ने डेमो किया था, ये पपेटियर्स त्रिपुरा का था, आसाम से था, केरला से थे, महाराष्ट्र से थे, तो इन लोग भी आए देखने और फिर उन लोग अजीब सा हो गया, ओह वी मिस्ड आउट, ये हम भी करते थे तो हमारा भी हो। वी सेड देन व्हाट आर यू डूइंग, यू नो, आप सोचते नहीं हो, यू नो, दिस इज व्हाट। तो ये इसमें अब रंजना जी ने ये भी कहा कि इन राजस्थान देयर शुड बी सम प्रोग्राम। शायद उनको रोज होटल में जाना है, गाना बजाना है, बेचना है पपेट, ओके, या तो हर साल एक कंपटीशन करो या कुछ करिए जिसमें ये पपेटियर्स कुछ बना, उनको पता होगा कि हर साल आएंगे हम शो करेंगे और वो शो को प्राइज मिलेगा या कुछ मिलेगा तो कुछ पुश मिलेगा। पर ये हो रहा था। तो दोनों साइड से द अदर पपेटियर्स हु केम फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, यंग पीपल, दे सब 20-24 टीनेजर्स थे, दे सेड के वी हैव कम वहां से यहाँ करने आया और आप लोग के शहर में आपके लिए हुआ 3 या 4 लोग हैं, हमें कोई 1 या 2 को ही बुलाए हर स्टाइल में, तो आप लोग क्यों नहीं इसका फायदा उठा रहे हैं, यू नो। एंड इट फेल डाउन। अनफॉर्चुनेट चीज है, पर यही जो बोलने जा रहा हूँ कि पपेटियर ऑल्सो हैज टू रियलाइज दिस एंड यू नो, एंड इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम्स है, घर का रहने का है जैसे अभी शादीपुर में है, या तो खाने पीने की है, जो भी है। आई मान रहा हूँ मैं, आसान नहीं है, बट जब अपॉर्चुनिटी है तब आपको लेनी पड़ती है ये, नहीं तो खत्म हो जाए। आप ट्रेन पे पढ़ो चढ़ो, नहीं तो ट्रेन चल जाएगी। Thank you. Thank you Dadi sir for answer. We have last 5 minutes से मीटिंग अगले 5 मिनट तक ही रह पाएगी, so we can take only 2 more questions if possible. जिनके सवाल नहीं ले पाए हैं उनसे मैं माफी चाहूंगा। तो रागिनी सोमन raised her hand, so you can Seema has raised her hand and you're not letting her speak. I can't see her hand raised. Now she's, I suppose, it ran away because nothing No, was happening. Seema Kapoor is there in the meeting, but yes. Oh, yes. Seema Kapoor. Yes. Who worked with Shri Ram Center with us. She's a work also. Yes, she did work. Yes. Where is she? She's gone now. She was continuously putting up her hand. Oh. So if you have any questions, Seema ma'am, you can please unmute and you can ask your question quickly. I don't see her now anymore. Where is she? Okay. I think she's there, but she's gone off screen. She's there. She's there, but she's gone off screen. Okay. So we can move to Ragini. We can move to Ragini. Ragini ji, you can unmute. हाँ, नमस्ते दादी सर, पुरन जी सर। मैं 1991 से पपेट शोज कर रही हूँ। Can we see who's speaking? Yeah, I can see you. Everybody But we can't see you. We want to see. नहीं दे रहे हैं। जी नमस्ते। मैं पुणे में रहती हूँ, महाराष्ट्र में। और दादी सर, नमस्ते दादी सर और पूरन सर के शोज वर्ल्ड पपेट डे का मैंने मुंबई में देखा था और उसी समय हमें भी थोड़ा परफॉर्म करने की वर्कशॉप में मतलब वहाँ पे चांस मिला था। और अभी तक मैंने 250 एनजीओस के साथ काम किया है, मगर हमें मालूम है कि हम आप तक कभी भी पहुँचने के लिए अभी भी काफी दूर हैं, बट वी वांट कि आपके साथ में कुछ सीखना है। तो आगामी इसमें आप हमें प्लीज इनपुट कीजिए, सीखने के लिए हम जरूर आएंगे, जहाँ भी हो देश के किसी भी कोने में। तो आप प्लीज हमें भी आपके साथ में इन्वॉल्व कीजिए। ठीक है, आप अपना काम दिखाए। In August I am in Pune from the 14-15 for a week I am in Pune, so I can see what you are doing there. या जरूर सर, धन्यवाद। ओके, एक सवाल है चैट बॉक्स में अविनाश जी की तरफ से। Seema's moving around. It's important. Okay. She was part of the Shri Ram Center puppet group. That's why I'm saying. She's there. No, she's sort of moving now. She must be upset that you didn't ask her. I told you, na, puppets don't have any ego. Human beings have. I'm so sorry if Seema, take that. Somebody else. आप आ जाइए question. Where is she?
आप आ जाए यहाँ, एक सेकंड जल्दी आइए। She's coming. आ जाओ यार, दिखाई तो दो। कब से वो बैठी थी? A sofa is there. Beautiful sofas there. Anyway, till she comes, is there somebody else? I don't know. Yes, अगर जब तक वो आ रही हैं तो अविनाश जी की तरफ से एक सवाल है कि 80s में ऑडियंस का कैसा रिएक्शन होता था जो अब है, दोनों में क्या फर्क है? उस टाइम लोग ज्यादा समझते थे या अब? ऐसा कोई ऑडियंस तो है। ऑडियंस जैसे कभी कभी पूरन बोलते हैं कि पपेट्री नहीं जिंदा है, पपेट्री मरने की, ऑडियंस खत्म हो गई। ऑडियंस, आज के ऑडियंस सिटी में या गांव में, और ये आप देखो कि बहुत सारी चीजें आई है, फोन है, टेलीविजन है, मोबाइल है, सब चीजें है। बट दिल्ली का ऑडियंस, वो भी एक टाइप का ऑडियंस की मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि इशारा रन्स दैट इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल। तो पहले जब शोज आते थे तो जो भी बाहर से कुछ शो होता था वो अच्छा होता था। बट अभी 18 साल हो गए, 18 फेस्टिवल हो गए, और अब ऑडियंस जो आ रही है वो भी सोचने लगी है कि ये शो अच्छा है, या ये क्वालिटी बेटर है, या ये पपेटियर का काम टेक्निक बेटर है। अब ये चीजें आई है, पर वो भी एक सिटी में, एक हैबिटेट सेंटर में होता है, तो ये ऑडियंस है। बट एक्सपोजर जब होता है, देयर इज डेफिनेटली, और ऑडियंस को अलग अलग चीजें देखने की भी मिलती है, यू नो। तो मुझे पता है कि व्हेन वी फर्स्ट डिड श्री राम सेंटर में मोटू की मूछ और काले कपड़े में हम चला रहे थे, और बैक एक्टर्स भी थे, और कमला देवी वाज देयर, चट्टोपाध्याय, शी केम डाउन द स्टेप्स इनटू बेसमेंट टू सी द शो फर्स्ट टाइम, एंड द फर्स्ट थिंग शी आस्क्ड मी कि यू हैव यूज्ड एक्टर्स और यू हैव यूज्ड पपेटियर्स जो दिखाई दे रहे हैं पपेट के साथ, right? So I said, आपको वो disturbing लग रहा है या नहीं? She says, no, it was very nice, but I'm asking you, how come or why did you use it? मेरा उनको question फिर ये गया कि आप अपना glove puppeteers देखो, इंडिया में बंगाल से है या केरला से है जो रिवाइव हुए हैं, या उड़ीसा से है, उनमें पपेटियर दिखाई दे रहे हैं। वो ट्रेडिशनल पपेटियर, वो बैठ के चलाता है पपेट, और पपेट के साथ भी बात करता है। तो ये एक टाइप ऑफ चीज ट्रेडिशनल आर्टिस्ट में भी है, एक स्टाइल में है, ग्लव पपेटियर्स में है। आप ग्लव पपेट्री कहीं भी दुनिया में देखो तो ट्रेडिशनल वाले स्क्रीन के पीछे छिप के करते, इंडिया में ये नहीं होता है। भारत में दे एक्चुअली टॉक विद द ऑडियंस। और ये आई रिमेम्बर एसएनए का एक फेस्टिवल हुआ था, एंड देयर वाज दिस बेनी पुतुल गाय फ्रॉम बंगाल जो आया था, वो 1 घंटा ऊपर 2 पपेट के साथ पूरी ऑडियंस को एंटरटेन कर रहा था, उनके हाथ में था, क्योंकि वो इम्प्रोवाइजेशन कर रहा था, गाना गा रहे थे, ये हो रहा था, उसकी जो भाषा थी वो ऑडियंस के साथ मिली थी। सो a modern puppeteer will not be able to do that so easily. तो उसके पास ये ताकत थी, and actor plus puppet, he was there with puppets also. So Seema Kapoor has come, I think. yeah. Okay, so we can switch to her. Seema ma'am, please, you can unmute. No, she's not there. She just passed by. She's not there. Okay, so we can move to Subin ji. Subin raised his hand. You can unmute, Subin ji. You can unmute and please ask your question quickly. Please unmute, sir. पहले unmute कीजिए अपना. Seema. Namaste ji, I am Subin from Kerala. I am a teacher. Now, any workshops for conducting for teachers, that is very useful. This is my Science India Festival. I made this innovative my puppet, like Nice. hydraulic system, how to manipulate a hydraulic system like this tortoise. Like Can you put him on the main screen, please, speaker? Yes. So we can see the puppet properly. So yes, Subin ji, you can please speak, and other can spin. This is a hydraulic system. How to work a hydraulic system through puppetry. I mainly introduced it in Science India Festival. Then some other teachers have any more ideas, we can share the ideas. So please conduct a workshop to
our Indian teachers. This is my humble request. Can you, do you think an online workshop works for you all, for teachers? No, yeah, definitely. And this is also my different types of puppets. This is my innovative puppets. Waste material puppets, and we can promote how to manipulate this to children. That is very useful. It's nice. And this is everybody is zero cost puppets. This is very electronic junction box. No nose, head, only two hands and a head. We can communicate. That is very useful. And how can we promote this type of puppets? We can make a platform to teachers. That is very useful. And this is my humble request to conduct a workshop to teachers. You are a teacher. Has Ratnamala or somebody got your contact so that we can do a workshop for teachers? If you can send us your address, contact number. Definitely. That would be good. You can send us on our email, puppeteerstrust@gmail.com. You can send us your detail. And to conduct a workshop, you need a few people. You need 7-8 people. अभी जो हमने एक बच्चों के लिए workshop की थी pandemic में, वो भी गुड़गांव के IT के children, but there was an organization and हमने kit बनाया था. मतलब एक डब्बे में 4 simple puppets बच्चों के लिए थे. So we made a box with 4 envelope. हर envelope में वो puppet का सामान था, जैसे glove puppet है या shadow puppet है. और फिर online हर Saturday को 2 घंटे के लिए they would open only that packet. और उसमें सामान सब था, because pandemic में ये नहीं मिल रहा था, वो नहीं मिल रहा था, ये नहीं. So this, and that box was couriered to them. It costed money, but courier का charge था, material, but वो सामान directly घर पे आ गया था, क्योंकि वो उस time बाहर नहीं निकल पा रहे थे बच्चे, और parents were fed up, the children were studying. So we did this workshop. It worked very well के सामान के साथ. क्योंकि हमेशा हम बोलते कि आप सामान आप बताइए, हम ले आएंगे सामान, पर जरूरी नहीं है कि वो हर बार सामान जो आपको चाहिए वो मिलता है उनके लिए. So this was also thing that we did, but workshop online, it can be done properly. Simple puppets, how to use for education. Definitely. Right. Thank you, sir. So one last hand raised from Harish VC. So we can take the last question for the session. Please, Harish, you can unmute and ask your question. I would like everybody to put their videos on. नहीं तो सब छिप के देख रहे हैं, ऐसे का नाम कर रहा है, अंदर से सब छिप रहे हैं. हाँ. And let Unima get a picture of the whole thing. All of them. Harish. Hello. Yes, Harish ji. Harish, how are you? Put your video on. Harish, we want to see you. He has a technical problem. Yes, sir. His voice is cracking. So, yes, you can please ask your question. Not clear. Not clear. Voice is not clear. Your voice is cracking. आपकी आवाज क्रैक हो रही है. आप चैट बॉक्स में लिखो जो लिखना चाहिए. जी. Okay. So if Seema ma'am is here, we can. She's not there. She's gone. Otherwise, we will have to wind up. Yeah. Wind up. Yes, we have to wind up the session. So Ratnamala ma'am, please. So over to you. So that was Anubhav, our first session, and I feel it was very, very successful. Thank you to the master puppeteers. Thank you to the audience. The aim of Anubhav is to get together and to talk. Puppeteers get together, talk, share your experiences, and meet more people. And I think that's what it's all about.
And Dadi Pudumjee and Puran Bhatt are the masters in this field, and they have really shared their valuable advice to all of us. And we thank them very much. And we look forward to another Anubhav session. Anybody who's interested can also send their names and suggestions. We will put this in the newsletter. And Manish and myself we were really excited. But unfortunately, Anurupa was taken ill. So we had to manage this. So maybe there are a little flaws, I don't know. Poor thing, she got a migraine, and Ranjana is away in Norway. Both of them were our left hand and right hand for us. But Manish and myself, I think we have done a good job. What do you say? Thank you so much to everybody. And thanks to Atul sir for last minute assistance. Thank you. Thank you so much. Daddy, thank you so much, Puran. Thank you so much to the audience. Thank you. Yeah. Thank you. Bye. Manish, you want to say something? Bye. Thank you, everyone. Dhanyavad. Keep in touch. Yes. Fruitful meeting. So many there, Partha, Paul, all the students are there. Can see so many people everywhere. Nice. Okay. I'm happy to see so many participants. We have never had them before in Unima meetings also. Okay, sir. Thank you, Okay, thank you, Ratnam Raman. Thank you. मैं फोन करता हूँ आपको. ठीक है सर. Thank you. Bye. दादी दिल्ली में ही आप? हाँ यही हूँ गर्मी में. मैं फोन करता हूँ आजकल मैं. आ जाओ. तो अब ये ऑनलाइन का फायदा है ना, ऑनलाइन का भी कुछ तो फायदा है ना. अरे कोई फायदा नहीं है ऑनलाइन का. हम मिल रहे हैं ना, हम सामने एक दूसरे को देखते हैं. जब तक एक दूसरे को देख नहीं लेते, वो मैग्नेट जब तक मिलता नहीं है ना, तब तक मैग्नेट का मजा नहीं आता है. वो तो अलग बात है, फिर भी हमने तो कुछ किया है. हाँ किया है वो. अच्छा है. ये तो सक्सेसफुल है. थैंक यू. Okay. Bye. Bye.